گیلانی کے انتقال کے بعد کشمیر میں حالات جزوی طور معمول پر، شہر سمیت وادی کے بیشتر علاقوں میں کام کاج ہو رہا ہے بحال۔ طالبان نے افغانستان کے متنازع صوبہ پنجشیر کو فتح کرنے کا کیا اعلان۔ اس طرح طالبان نے اب سبھی 37 صوبوں پر اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کیا پیش۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے کوچنگ مراکز بدستور بند، 10ویں اور 12ویں کے لیے اسکول کھولنے کی مشروط اجازت، والدین اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینا لازمی قرار دیا۔ آداب ناظرین، آپ سری نگر کے گلستان اسٹیج سے براہ راست اردو خبر نامہ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان رؤف فاروقی۔ سب سے پہلے بات کریں گے وادی کے حوالے سے، کیونکہ آج 5ویں روز گیلانی صاحب کے انتقال کے بعد آج 5ویں روز کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں جو ریسٹرکشنز ہیں ان میں نرمی دی گئی ہے اور بیشتر علاقوں میں آج تھوڑی بہت جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سڑکوں پہ تھوڑا بہت ٹرانسپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں دکانیں بھی کھولی گئی ہیں اور اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آج 5ویں روز جہاں سرکار نے ریسٹرکشنز ہٹائی ہے، جو پابندیاں لگائی تھی اس میں نرمی دی ہے، وہیں پہ کئی بیشتر علاقوں میں جو دکانیں کھولی گئی ہیں اور سڑکوں پہ تھوڑا بہت ٹرانسپورٹ بھی دیکھنے کو ملا۔ ادھر بات کریں گیلانی کے آبائی علاقے یعنی سوپور، وہاں پہ بھی آج مکمل طور جو ہے دکانیں بند پڑی ہیں اور سڑکوں پہ معمولی ٹرانسپورٹ چل رہا ہے۔ ٹرین سروس بھی فی الحال بند رکھی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ موبائل انٹرنیٹ سروس کو بھی فی الحال بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھی عرفان فاضل کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے ہی صورتحال پہ بات کریں گے کہ کس طرح کی صورتحال پوری وادی کی بنی ہوئی ہے آج کے روز جہاں سرکار نے ریسٹرکشنز کو ختم کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ آج بیشتر علاقوں میں جو سرکاری طور پر 4 دن ریسٹرکشنز رہی ہے وہ نہیں دیکھی گئی ہے اور خاردار تاریں جہاں پہ لگائی گئی تھی وہ بھی کئی علاقوں سے ہٹائی گئی ہے۔ اب آج کیا کچھ صورتحال ہے شہر سری نگر کے مختلف علاقوں کی یا مختلف ضلع ہیڈ کوارٹر کے عرفان فاضل کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش۔ عرفان، خیر مقدم ہے آپ کا اردو خبر نامے، ذرا بتائیے شہر سری نگر کی پہلے بات کریں گے۔ آج 5ویں روز ریسٹرکشنز تو سرکاری طور پہ ہٹائی گئی ہے کیونکہ جو خاردار تاریں مختلف علاقوں میں لگائی گئی تھی آج نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے، کیا اس کا مطلب یہ سمجھے کہ سرکار نے جو پابندیاں لگائی تھی وہ ختم کر دی ہے؟ بہت بہت شکریہ سعید روف۔ اگر دیکھا جائے تو آج 5واں روز ہے اور 5ویں روز کو لے کر صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسٹرکشنز جو ہے اسے ایز آؤٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ شہر کے حساس علاقوں کی بات کریں یا سول لائن سے لے کر یا پھر ڈاؤن ٹاؤن شہر خاص میں جس طریقے سے پابندیاں لگائی گئی تھی، خاردار تار سے راستوں کو بند کیا گیا تھا، بیریکیڈز لگائے گئے تھے اور چپے چپے پر سیکورٹی تعینات تھی اور پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی جو بھی کوئی ٹریول کر رہا تھا یا جو بھی کوئی چل رہا تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح صبح یہ ساری چیزیں جو ہے ایز آؤٹ کر دی گئی ہے۔ ہلکا ہلکا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ سڑکوں پر چلنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں کی جو آواجائی ہے، خاص طور پہ اگر میں بات کروں سرکاری ملازموں کو لے کر انہیں دفتر تک پہنچنا ہے، وہی گاڑیاں جو ہے خاص طور پہ اس وقت سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے۔ وہ ملازم جو ہے اس وقت آفیسز کی اور جو ہے روانہ ہو چکے۔ اس بیچ اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آٹو رکشہ جو ہے ہلکا ہلکا وہ بھی جو ہے دکھنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ مکمل طور پر جو ٹرانسپورٹ ہے وہ سڑکوں پر دکھ رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکانیں جو ہے حساس علاقوں کی بات کریں، خاص طور پر لال چوک کی اگر میں بات کروں تو کچھ دکانیں کھلی ہے، مکمل طور پہ پورا مارکیٹ نہیں کھلا ہے۔ شہر خاص کی اگر بات کریں تو وہاں سے بھی یہی خبر آ رہی ہے، چاہے وہ خواجہ بازار کی بات کریں، نوٹا، گوجوارہ، رینا واری، وہاں پر بھی دکانیں اس وقت مکمل طور پر بند دکھائی دے رہی ہے۔ روف، منصوبہ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی کہ وہاں پہ بھی مکمل طور بند رکھا گیا آج بھی؟ بالکل بالکل صحیح۔ ابھی ہم نے کچھ لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جو کہ کوکر بازار، مائسوما میں یا ہوا قدل سائڈ سے جو رہتے ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا تو وہاں پر ان کا ماننا ہے کہ مائسوما گو قدل کا علاقہ جو ہے اس وقت مکمل طور پر دکانداری کے حوالے سے بند پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی کاروباری ادارہ اس وقت دکھائی نہیں دے رہا ہے جو کہ کھل چکا ہے۔ ہاں، یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی جو موومنٹ ہے وہ سڑکوں پر دکھنی ضرور شروع ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دکھنا شروع ہو گیا ہے، یا کچھ جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ
ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं कि एक दो गाड़ियां वो भी दिखनी शुरू होगी, मगर अभी भी जिस तरीके से जिंदगी पटरी पर मुकम्मल तौर पे बहाल होनी चाहिए थी वैसी सिचुएशन अभी मौजूद है। जिला हेडक्वार्टर्स की क्या कुछ सूरत हाल है, खासकर अगर हम सोपोर की बात करें? देखिए वहां पर सुनने में आ रहा है कि अभी भी बंद पड़ा हुआ है। नो डाउट कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो हमारे वहां पर कुछ सोर्सेज जो है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, उनका भी मानना है कि जिस तरीके से रिलैक्सेशन या ईज आउट की जो बात की गई है वो अभी पूरी तरह से नहीं दिख रही है, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए जिस तरीके से सोपोर के लोगों का मानना है कि अभी भी वो मुकम्मल तौर पर जी हाँ दुकानें खोलना पसंद नहीं कर रहे। कि 4 दिन हमने देखा कि जो भी रास्ते हैदरपुरा की तरफ जाते हैं उनको बंद रखा गया, तो आज क्या कुछ सूरत हाल है जो रास्ते हैदरपुरा की तरफ जाते हैं, चाहे हम श्रीनगर की बात करें या बारामूला या अनंतनाग से बात करें या बडगाम से जो रास्ता हैदरपुरा की तरफ जाता है, उस रास्ते की क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए सईद रूफ, कॉर्नर टू कॉर्नर चाहे बिमना की बात करूं, नौगाम से हैदरपुरा, बिमना टू हैदरपुरा, रामबाग से हैदरपुरा जो है नो डाउट कि बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, खारदार तार को हटा दिया गया है। वहां से जो मूवमेंट है खासतौर पे, क्योंकि इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए एयरपोर्ट का रास्ता है और एयरपोर्ट जो है ट्रैवलर्स को, पैसेंजर्स को या टूरिस्ट जो है उनकी जो आवाजाही है वो वहां से दिखाई दे रही है अच्छी खासी। जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 दिन देखा कि वहां पर जो है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी या पूछताछ भी की जा रही थी, आज वहां पर थोड़ा सा ईज आउट है, मगर अभी भी पूरी तरह से दुकानें खुली नहीं हुई है। इरफान, मोबाइल इंटरनेट हवाले से क्या कुछ फैसला लिया अभी सरकार ने? क्या कुछ खबरें इस हवाले से कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस को ऑन कर दिया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त मोबाइल इंटरनेट पे ही सबकी नजरें हैं, क्योंकि कल भी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी और रिव्यू मीटिंग में आईजी कश्मीर ने भी बताया था कि एक दिन जो एक्सटेंड इसे कर दिया गया। नो डाउट कि कल ही हम सोच रहे थे कि शायद कल ही ये ऑन हो जाएगा, मगर आज 5 बजे के बाद जो है इस खबर पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि आज 5 बजे के बाद जो गवर्नमेंट का जो फैसला है या खासतौर पर शालीन काबरा की जो स्टेटमेंट आई है, पुलिस की जो स्टेटमेंट आई है मोबाइल इंटरनेट को लेकर, हो सकता है कि आज 5 बजे के बाद इंटरनेट जो है मोबाइल इंटरनेट कश्मीर में बहाल हो। ट्रेन सर्विस के हवाले से भी कोई मीटिंग ली गई है, रिव्यू मीटिंग ली गई, कोई फैसला सामने आया है ट्रेन सर्विस को बहाल करने का? क्योंकि बेशतर लोग जो जैसे मुलाजमों को सरकार ने ऑर्डर दिया है कि आपको दफ्तरों में हाजिरी को यकीनी बनाना है, तो बेशतर मुलाजिम ऐसे हैं, चाहे हम साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, वो ट्रेन का सफर करते हैं, तो इस हवाले से सरकार ने कोई फैसला लिया है? देखिए एक साइड से मुलाजमों को दफ्तरों तक पहुंचना है और दूर दराज इलाकों से पहुंचना है, ट्रैवल करना है, जबकि आप देख रहे हैं कि अभी भी ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चल नहीं रहा है। ट्रेन ही एक लोकल ट्रांसपोर्ट, एक सस्ता ट्रांसपोर्ट है जिससे वो ट्रैवल भी करते थे और ऑन टाइम पहुंचते थे, और वो उनका भी मानना है कि अभी भी ट्रेन सर्विसेज जो है सस्पेंड है, और उनका ये जरूर मानना है कि अगर हमें दफ्तरों तक पहुंचना है या ट्रैवल करना है, किसको बानिहाल पहुंचना है, तो ट्रेन सर्विस को भी बहाल करना चाहिए। और इस बीच में ये भी खबर आ रही है कि अगर आज जबकि सिक्योरिटी जो है या सिचुएशन जो है सिनेरियो इसे अच्छी तरीके से जज किया जाए, अगर रिलैक्सेशन ईज आउट रही या माहौल ठीक रहा, तो आने वाले टाइम में ट्रेन को भी बहाल किया जा सकता है। चलिए इरफान, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरफान फाजिल बात कर रहे थे, और सिचुएशन के हवाले से क्या कुछ सिचुएशन है, पूरी वादी की बात करें, शहर श्रीनगर की बात करें, आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं अब सरकार के एक और हुक्मनामे के हवाले से। आला तालीमी इदारे और कोचिंग मराकज़ जो है फिलहाल बंद रहेंगे, और 10वीं और 12वीं जमात के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि मशरूत तरीके से जो उनकी जो तदरीसी अमल है वो शुरू किया जाएगा 50% की अटेंडेंस के साथ साथ, और साथ में इसमें वैक्सीनेशन की बात की गई कि वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रखा गया है, और वालिदैन या डिप्टी कमिश्नर जो होंगे उनसे इजाज़त लेनी होगी। जहाँ सरकार का एक फैसला कि फिलहाल स्कूल यहाँ के जो है वो बंद रहेंगे, कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे, मगर अगर हम मार्केटों की बात करें, सूरत हाल की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, ओवरलोडिंग रहती है, गाड़ियों के छतों पे अब सवारियां बैठी रहती हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं रखा जाए और सारे मामला को मॉनिटर भी नहीं किया जा रहा है। सरकार का ये बड़ा फैसला कि 10वीं और 12वीं जमात के जो स्कूल्स हैं वो खोले जाएंगे और मशरूत तरीके से अब उनके जो है वहाँ पे अटेंडेंस शुरू की जाएगी, यानी क्लासिफिकेशन शुरू की जाएगी। फिलहाल हांजूरी के साथ हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जानना चाहेंगे सरकार के इस फैसले के हवाले से किस तरह का फैसला है, जहाँ एक तरफ थर्ड वेव की बातें भी हो रही है कि थर्ड वेव आ सकती है और सरकार उसके लिए मुतहरिक है, टीकाकारी जहां लाजमी करार दिया गया है, तो थर्ड वेव के हवाले से बात करें तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चों पे ज्यादा असर पड़ सकता है। हिलाल, खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में, जरा बताइए सरकार का फैसला, अब 10वीं और 12वीं जमात के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे, यानी तदरीसी अमल शुरू किया जाएगा, अगरचे 50% ही वहां पे अटेंडेंस रखी जाएगी और बाकी जो SOPs और गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाएगा, टीकाकारी को लाजमी करार दिया जाएगा, तो थर्ड वेव के बीच में ये किस तरह का फैसला है?
देखिए रूफ, स्कूल खोलना एक बड़ी डिमांड थी पब्लिक की और एक वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन क्या इस वक्त जब सितंबर का महीना चल रहा है और अब एग्जामिनेशन के लिए आपके पास बहुत टाइम कम रहा है, जब बच्चों से बात करते हैं, जब ऐसे ही तालिब इल्मों के साथ हम बात करते हैं, चाहे 10वीं के हो 12वीं के हो, तो उनका मानना है कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपना रास्ता साफ कर दिया है ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, और अब स्कूल खोलने का जो एक ऑर्डर जारी किया गया है ये एक बहाना हो सकता है, ये तालिब इल्मों के बकौल है, क्योंकि उनका मानना है कि जो अब 50% के हिसाब से आपने क्लास में अटेंडेंस देनी होगी, तो उसका मतलब है कि एक महीने के अंदर आपको 15 दिन ही पढ़ने को मिल सकते हैं, यानी एक बच्चे को एक महीने के अंदर 15 दिन ही पढ़ने को बच सकते हैं। न सिर्फ इतना, उसमें भी अगर जो हॉलीडेज नहीं होंगे तो जो इतवार को छोड़कर सिर्फ 12 ही दिन बचते हैं। तो इस तरह से उनका मानना है कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था, बल्कि इससे पहले ही उनकी डिमांड थी कि ये सेशन जो है थर्ड वेव, जो कि पहले बोला जा रहा था, क्योंकि माह जून या जुलाई से ही हम देख रहे थे कि इस तरह से केसेस के अंदर गिरावट आ रही थी, लेकिन उस वक्त इस तरह का डिसीजन नहीं लिया गया था, डिस्पाइट कि वालिदैन की जानब से ये डिमांड की जा रही थी कि कम से कम अगर आप रिस्क ले रहे हैं बाकी सेक्टर्स को खोलने के लिए, तो अगर ये रिस्क उठानी है तो ये स्कूल को लेकर उठाई जाए। लेकिन थर्ड वेव का बहुत पहले से ही तस्करा चल रहा था और मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पेशन गोई जारी की थी कि अगस्त और अक्टूबर के महीने से पहले ये थर्ड वेव आ सकते हैं, लेकिन अभी भी ये थर्ड वेव का खतरा है। लेकिन इस ज़िम्मन में सरकार ने फैसला लिया है, जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए इस तरह का अमल शुरू किया जा रहा है। हिलाल, बिल्कुल एग्जामिनेशन के हवाले से जो है अमल शुरू किया, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पहले ही इशारा दिया है कि अब एग्जामिनेशन लिए जाएंगे और वहां पे सिलेबस में जो है कमी देखने को मिलेगी, मगर बच्चों से एग्जाम लिया जाएगा। कहीं ना कहीं वालिदैन ने उस पर भी गम गुस्से का इजहार किया है कि उन्हें कहा कि ये मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है, चाहे आप सिलेबस कम करने की बात करें या प्रमोशन देने की बात करें, तो ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो सकती है। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ एग्जामिनेशंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि अगर आप 10वीं जमात के बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं तो 11वीं का क्यों नहीं ले रहे हैं, या अगर आप 10वीं जमात के बच्चों को कह रहे हैं कि आप स्कूल आ जाओ तो 11वीं को क्यों नहीं बोल रहे हैं। पढ़ना तो 10वीं में भी है और 11वीं में भी है, ये तजाद नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रायोरिटी एग्जाम यहाँ पर रह रही है, क्योंकि 11th का जो एग्जाम है वो ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है, बल्कि जो 10वीं और 12वीं है उसको ही प्रायोरिटाइज किया गया है। यानी तालीम यहाँ फोकस नहीं रही है, बल्कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, इस पर सरकार का तवज्जो है, नंबर 1। नंबर 2, अब कुछ ही दिन बच्चे हैं और इन दिनों में बच्चे कर भी क्या सकते हैं, और नंबर 3, जब वालिदैन ने कहा था कि इस तरह की चीजें की जाए तो तब नहीं किया गया है, और आप टीकाकारी को काफी अहमियत का हामिल बता रही हैं, और आप कहते हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो जब हो जाए तो उसके बाद ही आप स्कूल आ सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो सरकार का डेटा है, जो प्रोसीजर है, वो +18 है, यानी 18 साल से जायद जिसकी उम्र है वो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन 10वीं जमात का जो बच्चा है वो 16 साल का है, 12वीं जमात का बच्चा वो ज्यादा से ज्यादा 18 साल का हो सकता है या बिलो 18 हो सकता है, तो उनकी वैक्सीनेशन अभी नहीं हुई है। अभी सरकार जब इस चीज के लिए कंडीशन रख रही है कि हाँ टीकाकारी होनी चाहिए, तब जाकर वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर ये टीकाकारी कब हो जाएगी और इसका अमल क्या होगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। काफी दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ जो मैन एंड मशीनरी है, यानी खासतौर पर जो अमला होगा उन्हीं को वैक्सीनेट करना वो अभी बन सकता है, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन हुई भी होगी, लेकिन तालिब इल्मों का कब किया जाएगा ये अभी समझ से बालातरी है। इलाज, जहां एक तरफ सरकार फैसला कर रही है कि 10वीं और 12वीं जमात को लेकर अब क्लासिफिकेशन शुरू होगी, तदरीसी अमल शुरू किया जाएगा, मगर इस पर भी कहीं ना कहीं तजाद दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने यह कहा कि मुतल्लका जो डिप्टी कमिश्नर या खासकर वालिदैन से इजाजत लेनी होगी तभी आप क्लास शुरू करेंगे। अगर आप फैसला कर रहे हो कि क्लासिफिकेशन शुरू करने का, तदरीसी अमल शुरू करने का, तो फिर वालिदैन की इजाजत क्यों? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये साफ किया जा रहा है रास्ता एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, अदरवाइज वालिदैन से इजाजत क्यों लेनी है, क्योंकि इस वजह से सरकार कह रही है कि हो सकता है बच्चों को या उनके वालिदैन को ये खौफ होगा कहीं उनके बच्चों को स्कूल के अंदर वायरस ना हो जाए, वो बीमार ना हो जाए। लेकिन बात यह है कि सभी बच्चे चाहते हैं वो स्कूल चले जाएं, लेकिन अगर यही रिस्क लेनी थी, अगर वालिदैन को ये डर और खौफ उनकी इजाजत के बगैर आप स्कूल नहीं छोड़ते, तो आपने जून और जुलाई के अंदर इस तरह का डिसीजन क्यों नहीं लिया, ये बड़ा सवाल है। अब कुछ ही महीने बच्चे हैं, मैं एक बार फिर से ये कहता हूं कि कुछ ही वक्त बचा है, और इस वक्त में भी जब 50% रेशो के हिसाब से आप तालीम फराहम करेंगे बच्चों को, उनकी अटेंडेंस को मुमकिन बनाएंगे, तो फिर भी हम देख रहे हैं कि एक महीने के अंदर 11 से 12 दिन के आसपास ही एक बच्चे को नसीब हो जाते हैं पढ़ने के लिए, और उस दौरान वो पढ़ेगा क्या और
कब तक वो उसमें क्लास में सेटल भी हो जाएगा, ये जो बात है काफी मजा का खैस लग रही है। हिलाल, जरा ये भी बताइए आखिर में, जैसे सरकार कह रही है कि हर एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, जहां अनलॉक कर दिया गया फिर सारे मामला जो है सरकार की देखरेख में है, मगर अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, ओवरलोडिंग रहती है, गाड़ियों के छतों पे अब जो लोग बैठे होते हैं, तो इन मामला को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। क्या इससे कोविड-19 की तीसरी लहर बढ़ने का खतरा नहीं है? तो सरकार के दावे कहां पे आप देख रहे हैं? देखिए, सरकार अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी मॉनिटरिंग पर रखने का ही दावा करती है, ठीक उस तरह से जिस तरह से वो मार्केट्स को मॉनिटर कर रहे थे, ठीक उस तरह से जिस तरह से वो पैसेंजर गाड़ियों को मॉनिटर कर रहे थे, ठीक उस तरह से जिस तरह से वो मेलों को मॉनिटर कर रहे थे, तो फिर स्कूलों का खुदा ही हाफिज है। क्योंकि अगर इसी तरह की मॉनिटरिंग रही है तो फिर स्कूल भी इस वबाई वायरस से बच नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो वायरस का फ्लो वो काफी डाउन हो चुका है, अभी ज्यादा उसका नहीं है, लेकिन अगर मॉनिटरिंग ऐसी ही रही जैसा सरकार दावा कर रही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर रखी जाएगी, तो ठीक, अगर उसी तरह रही जहां जिस तरह मार्केट्स और दीगर जगहों पर हमने देखा, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई मॉनिटरिंग कह सकता है, बल्कि वो मॉनिटरिंग के नाम पर एक मजाक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बात कर रहे थे। कुछ बात हो रही थी सरकार के फैसले के हवाले से, तदरीसी अमल शुरू किया जाएगा 10वीं और 12वीं जमात को लेकर, क्या एग्जामिनेशन के लिए ये अमल शुरू किया जा रहा है? और खासकर जैसे सरकार के दावे बढ़े हैं कि कोविड-19 के हवाले से हर एक मामले को मॉनिटर किया जा रहा है, हर एक जाविया को परखा जा रहा है कि कहां पे वायलेशन हो रही है, मगर बेशतर इलाकों से जो हमारी नजरों से भी गुजरा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे हम बड़ी गाड़ियों की बात करें, बसों की बात करें, सोमो की बात करें, या जितने भी पैसेंजर गाड़ियां हैं उनकी बात करें, वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। ओवरलोड एक तो गाड़ियों के अंदर रहता है, गाड़ियों के छत पे भी जो है लोग बैठे रहते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंस, ना कोई मास्क का इस्तेमाल, ना एसओपीज। तो सरकार क्या इन चीजों को नहीं देख रही? क्योंकि गाड़ियां जो है वो सड़कों पे चल रही है और सरकार की मैन एंड मशीनरी जो है वो सारे मामलात को देख रही है। क्या यहां पे कोविड-19 का फैलने का खतरा नहीं रहता है? क्या सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है? सरकार इनको रोक नहीं सकती है? इन मामलात को क्या कहीं देखा जा रहा है, परखा जा रहा है? क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायतें हैं और हमारी नजरों से भी गुजरा है। कल के डेट की बात करें, 2 दिन पहले की दिन की बात करें, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है काफी भीड़ रहती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मगर कहीं पे भी किसी को रोका नहीं जा रहा है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है। अगर जुर्माना लिया जा रहा है, वो स्कूटर या जो निजी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। तो सरकार का फैसला स्कूलों को खोलने के हवाले से 10वीं और 12वीं जमात को और सारे मामलात को मॉनिटर करने का, तो क्या अगर यही हाल रहा, जो सरकार मार्केट का हाल देख रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल देख रही है, अगर ऐसे ही मामलात रहे तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कोविड-19 की तीसरी लहर है उसको हम रोक सकते हैं। अस्पतालों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, अस्पतालों के अंदर का भी हाल हमने दिखाया। सरकार को चाहिए कि हर एक मामले को नजदीकी से देखे और जहां कहीं भी वायलेशन हो रही है तो वायलेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करे, ताकि बाकी लोग जो है वो दूर रहे वायलेशन करने से। मगर सरकार ने कागजी तो हुक्मनामा जारी किया है, मगर जमीनी सतह पे जो हुक्मनामा है इसको अमलाया नहीं जा रहा। नाज़रीन, जहां तालिबान ने अफगानिस्तान के जो मुतनाज़ सूबा है पंजशीर को फतह करने का फैसला किया है, वहां पे उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने वहां पे अपनी हुकूमत कायम की है। और जो पूरे अफगानिस्तान की बात करें, जो 37 सूबे अफगानिस्तान के हैं, वहां पे अब हुकूमत कायम की है तालिबान ने, ये दावा है तालिबान का। मगर दूसरी तरफ बात करें, जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, उन्होंने दावा किया है कि उनकी जंग जो है वो जारी रहेगी तालिबान के खिलाफ। उनका ये कहना है कि जो तालिबान दावा कर रही है पंजशीर को फतह करने का, वो दावा गलत है, वो सही नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक उनका यह कहना है कि पंजशीर उनके कब्जे में है और तालिबान के अगर 36 सूबों की बात करें वहां पे भी उन्होंने कहा कि पूरी तरह कब्जा नहीं है। और पंजशीर के हवाले से उनका यह कहना है कि अभी वहां पे जंग जारी है। तालिबान का दावा गलत है कि पंजशीर को तालिबान ने फतह किया है। नाज़रीन, आप जरा बात करेंगे जिला बडगाम के हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा की बात करें। 1982 में महकमे हाउसिंग ने इस कॉलोनी को तामीर किया है और सरकारी कॉलोनी है ये।
اور وہاں پہ لوگوں کو پلاٹ اجرا کیے گئے ہیں مکان تعمیر کرنے کے حوالے سے. اگر پہلے فیز کی بات کریں تو زیادہ تر ملازموں کو ہی وہاں پہ لایا گیا تھا رہنے کے لیے, پھر جو وہاں کے ملازم ہیں جنہوں نے پلاٹس لیے تھے انہوں نے دوسرے لوگوں کو دیا, اور اب کثیر جو آبادی ہے وہ اب یہاں پہ رہائش پذیر ہے. مگر ہاؤسنگ کالونی امپورہ کی بات کریں تو یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی نظروں سے اوجھل ہے, کیونکہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو جو رول نبھانا چاہیے تھا ہاؤسنگ کالونی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کہیں نہیں دکھ رہا ہے. ڈرینیج سسٹم فیلئر ہے ہاؤسنگ کالونی امپورہ میں, کہیں پہ بھی ڈرینیج سسٹم ہے ہی نہیں. اگر سڑکوں کی بات کریں سڑکیں ویران پڑی ہوئی ہے. اسی طرح باقی جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کہیں مکمل نہیں ہوئے, اور جو وعدے کیے گئے تھے سرکار کی طرف سے اس وقت کی جو سرکاریں بنی تھی یا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے. اب ایک جو اگر ہم ہاؤسنگ کالونی کے میپ کی بات کریں, جو میپ بنا ہوا ہے وہاں پہ ایک راستہ جو ہے وہ شیخ پورہ سے نکل کے سیدھے ہاؤسنگ کالونی میں پہنچتا ہے. تو یہ نقشے میں یہ جو میپ بنایا گیا اس میں یہ راستہ دکھایا گیا تھا. تب سے لے کر ابھی تک کی 1982 سے لے کر ابھی تک کی بات کریں یہ راستہ جو ہے مکمل نہیں ہوا ہے. اب اس پہ جو لینڈ مافیا ہے انہوں نے قبضہ جمایا ہے اور وہ اس راستے کو کھولنے نہیں دے رہا. اگرچہ ڈویژنل کمشنر کے آرڈرز بھی اب اس میں ہے کہ اس راستے کو بنایا جائے, تعمیر کیا جائے اور ہاؤسنگ کالونی کے لوگوں کے لیے وقف کیا جائے, مگر ایک طرف ڈویژنل کمشنر کشمیر کے آرڈرز اور دوسری طرف جو لینڈ مافیا ہے ان کی گنڈا گردی کہ انہوں نے پوری طرح تارے لگا کے رکھی ہے اس راستے پہ اور کھولنے نہیں دیا. وہاں کی عوام جو ہے اب وہ سراپا احتجاج ہوئی ہے سرکار کے خلاف, ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے خلاف کہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کیوں کارروائی نہیں کر رہا. اگرچہ معاملہ ڈویژنل کمشنر نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی نوٹس تک پہنچایا ہے, متعلقہ تحصیلدار وہاں پہ آئے بھی ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ راستہ کھولا نہیں گیا ہے, تارے وہاں پہ لگا دی گئی ہے. آبادی اب سراپا احتجاج ہے کہ اگر کالونی کو بنایا گیا ہے جو وہاں اس وقت دعوے کیے گئے تھے اور جن دعووں کے بنا پہ یہ ہاؤسنگ کالونی بنائی گئی تھی وہ دعوے کہیں پورے نہیں ہوئے ہیں اور ڈیولپمنٹ کی کہیں بات نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کی بات ہم آپ تک پہنچائیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے, سرکار کے فیصلے کے حوالے سے, اور جو لینڈ مافیا ہے جنہوں نے وہاں پہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ جمایا ہے اس حوالے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہم لوگوں کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں. یت مسئلہ بڑ پرین واقع 1927 من الاٹمنٹ گم سڑک ہاؤک تھی نقشس من باضابطہ نقشہ مے کالنی ہند نقشہ تس گھر موجود اگر تھی وچو بہ ہاؤ سہ نقشہ تہ تنہ پہ آج تان یہ سڑکیں گھان اخ گاڑ فنڈ گاڑ کیا تان وت یت ؤری کران ہپٲرۍ سڈکو وت استعمال سو دشیت برونٹ بنیم یعنی راڈار یہ ایسٹیبلش کر تمو سو وت بنم یت پرسان کہین سوری آرام تھی تلو ات فلم یہ 4 کلومیٹر نفع 4 کلومیٹر سری نگرس نزدیک یعنی الاٹمنٹ کر تمہ گۄڈنِچی کنڈیشن تُہۍ ہسا گژھِو آسٕنۍ سیٹی ہٕنٛدۍ راشن ہولڈر تُہۍ ہسا گژھِو آسٕنۍ 7 ؤری گٔمٕژ راشن نِوان سری نگر تہٕ سۄ ٲس اکھ کنڈیشن. بیاکھ ٲس سٹیٹ سبجیکٹ کنڈیشن, بیاکھ ٲس کنڈیشن ایمپلایز گژھِ آسٕنۍ. ایمپلایز کتہِ واتہِ 10 بجہِ دفتر اَسہِ چھِ 4 کلومیٹر یپٲرۍ بڑان گاڑِ گٔے اوترٕ ییٚتہِ لُکن ہٕنٛز مہربٲنی گوٚو یہِ کھڑا ییٚتہِ سٹینڈ ییٚتہِ اوس نتہٕ اوس اَسہِ پیٚوان 3 کلومیٹر پیدل وسُن. روڈ حظ کوٚرُکھ راتھ درٛالن اگر تُہۍ اتٮ۪ن وٕچھِو بہٕ ہاوو تۄہہِ تِم چیٖز تہِ 160 کنال کھاہ مرلہٕ ییٚمیُک گاسہٕ چرٲے نہ گرین بیلٹ آسہِ روڈ ڈیولپمنٹُک اتہِ چھُ ناو تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ وۄنۍ چھُنہٕ جٲیز سُہ واچرن کٕنۍ 8 کنال درالن کٕنۍ أکِس نفرس انڈر گراوُنڈ مکان بنومُت سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ بدلہٕ وۄتھان لڑایہِ تٔمِس چھُ مٲلکہِ مکان دپان مےٚ دِ پونٛسہٕ واپس ژےٚ کتھ کِنی مےٚ گاسہٕ چرٲے. اکھ چھُ ریونیو محکمس منٛز چھُ اکھ سُہ شخص چھُنہٕ مُلٲزمٕے سُہ چھُنہٕ ریونیوُک مُلٲزِم وقت چھِ تٔمسٕے اتھِ کاکد چھُ سُے دِوان تمام کاکد چھُ دِوان ریونیوُک اکھ اَوٕ ڈور نفر. أسۍ گٔے وفد کِس صوٗرتس منٛز ڈِوِجنل کمشنر کشمیٖرس تٔمِس ہوو اَسہِ ڈاکومنٹس تٔمِس ہوو اَسہِ کالنی ہُنٛد میپ آفٹر گیٹنگ سیٹسفیکشن تٔمۍ حظ کوٚر اِمیٖڈیٹلی کہِ رِموٗ دی گاسچراے لینڈ سٹیٹ لینڈ بیٚیہِ کٔرِو سا ریسٹور یِمن روڈ بیٚیہِ یُس انکروچمنٹ سُہ ہٹٲو پتہٕ حظ گٔے سُہ کٔر تٔمۍ ڈپٹی کمشنر بڈگام آن 30th has constituted a team. So team کٔرٕکھ constitute headed by تحصیلدار بڈگام. یِم ریونیو آفیسر چھِ یِم چھِ یِمو سۭتۍ رِلے long back ییٚتٮ۪ن کٔرٕکھ میوٗٹیشن سیٹلمنٹ گاسہٕ
गाचरे होक आबादी दे होक खालसा सरकार यम दे आर हैप्चुअल पत गई युतु टीम कंस्ट्रक्ट तम आए मौके पे तमो कर आइडेंटिफाई यह सारी गाचरे लैंड पे कंस्ट्रक्शन गमत बे रोड अम पे यमो इलीगल कोर्मत तमो कर डिमोलिशन युतु गई रोड मतलब चलान कंटिन्यूटी एज पर ड्यू ऑर्डर सडनली रात आए यमो कोर ब्लॉक रोड अत खनिक यह सड़क वगैर इमीडिएटली वी रश टू पुलिस स्टेशन गई ड्यू कॉमस कोर कंटैक्ट कोर डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार आए ऑन स्पॉट तम वो तम कर पानस ब्रोह कर रिमूव कर बे कर दाल सोरे दाल मालिक वन सोरे दाल यम गाचरे कनान और बे कोर तम कमेटी हेडेड बाय दिस तहसीलदार बे हाउसिंग तमो कर आइडेंटिफाई यह सोरी लैंड गाचरे यह मिस यूज कर पे युथु आए तम आए और वापस यमो कोर बे कंक्रीट इस तुम वो वनकन यमो कर बे ब्लॉक बे सनक सड़क खनित बे ड्रेनेज चलिए, हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा के लोग जो है वो लैंड माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है, क्योंकि जो रास्ता बनाया गया था हाउसिंग कॉलोनी के लिए, जो नक्शे में जो रास्ता रखा गया था उस पे 1982 से लेकर अभी तक की बात करें इतने सालों में काम नहीं हुआ, रास्ता खुला नहीं है, ना बना हुआ है। अब लोगों ने जब बात उठाई है तो जो लैंड माफिया है उन्होंने उस रास्ते को बंद रखा है। और अगर हम बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जो सरकारी जमीन है उनको प्लॉट्स में तकसीम करके लोगों को बेचा जा रहा है। सरकार और जो मुतल्लका इंतजामिया है वो खामोश बैठी तमाशा देख रही है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से। तामीर व तरक्की की बात करें तो सरकार ने साल 2019 के बाद की बात करें तो गवर्नर इंतजामिया ने बेशतर प्रोग्राम्स चलाए हैं डेवलपमेंट को लेकर। बैक टू विलेज प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जहां सरकार एडमिनिस्ट्रेशन लोगों तक पहुंची है और वहां पे उन्होंने लोगों के मामलात सुने हैं और उन मामलात को हल करने के भी जो है वादे दिए गए हैं। मगर बैक टू विलेज प्रोग्राम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें तो लोगों ने जो भी डिमांडें सरकार के सामने रखी हैं, बेशतर इलाकों में लोग शिकायतें कर रहे हैं कि वो डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं हुई है। खीरीगुंड चाड़ोरा का इलाका है, वहां की आवाम भी सरापा एहतिजाज है, क्योंकि उनका कहना है कि साल 2017 में वहां पे जो नाले दूध गंगा है वहां पे एक पुल तामीर करने का काम जो है हाथ में लिया गया था, क्योंकि उनके लिए बड़ी अहमियत का पुल है ये, क्योंकि नाले दूध गंगा उनको पार करना है तो इस पुल का बनना बड़ा जरूरी है। वहां के जो तलबा व तलबात है उनको अगर अपनी तालीम जो है वो कंटिन्यू करनी है तो दूसरे इलाकों में जाना है, तो उसके लिए भी उन बच्चों को यही नदी जो है पार करनी है। साल 2017 से लेकर अभी तक की बात करें, ये पुल जो है ये तामीर नहीं हुआ है, नामुकम्मल है, क्योंकि इस पे इंतजामिया ने या महकमे जो आरएनबी है उन्होंने जो काम थोड़ा बहुत किया था फिर नामालूम वजूहत के बिना पे काम को रोक दिया गया है। कई बार जो वहां के लोग हैं उन्होंने महकमे आरएनबी की नोट्स में लाया है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए और बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीनों प्रोग्राम में लोगों ने ये कहा कि उन्होंने ये डिमांड जो है सरकार के सामने रखी है उन प्रोग्रामों के जरिए कि इस पुल को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि उनकी जो बड़ी मुश्किल है वो खत्म हो सके। मगर बैक टू विलेज प्रोग्राम खत्म भी हुए, फोटो सेशंस भी किए गए हैं, सारे मामला हो गए, मगर अभी तक ये पुल नहीं बना है। हमारे बच्चों को तकरीबन 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो हमें एडमिशन करने के लिए। जब ये 8th में यहाँ से इनकी डिस्चार्ज हो जाती हैं तो आधे बच्चे तालीम ही छोड़ देते हैं। आधे बच्चे तालीम ही छोड़ने क्योंकि उनके पास इतना सहारा नहीं है। पैदल यहाँ पर आपने देखा कि पुल है, यहाँ पुल आता है वो भी इनकम्प्लीट है, उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों ने तालीम अधूरी छोड़ी। ये है हमारी एक और बात। चलिए, खीरीगुंड चाड़ोरा की आवाम सरापा एहतजाज पुल को तामीर करने के हवाले से और डिमांड उन्होंने कई बार रखी है मगर सरकार ने तवज्जो नहीं दी। फिर एक बार उन्होंने कहा कि सरकार के सामने ये इल्तिजा की है, उनके सामने फरियाद रखी है कि इस पुल को तामीर किया जाए ताकि जो उनकी बड़ी मुश्किलात है वो हल हो सके। इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।